Hello students, welcome to Rajkumar Educational Academy. Today we will study chapter number 14 of standard 10th subject maths, that is statistic. You already have studied this chapter in 9th standard, but here we will first see the revision part of standard 9th and then we will move further for standard 10th. Students, what do you mean by statistic? Let us see what is statistics. Statistic is nothing but collection of data. Whatever we have collected and then we have to regroup them. Then what we arranged it, interpret it out and we come to the conclusion. That is statistic. Let us have a look what the definition means. Let us see this. Statistic. The definition of statistic is a branch of mathematics that deals with the collection, analysis, interpretation and presentations of masses of numerical data. Whatever we got, जो भी हमको मिल रहा है, collections कर रहे हैं, उसका analysis कर रहे हैं, interpretation कर रहे हैं, और उसको फिर arrange करके we come to the conclusion and that makes our task easier. वो quantitative approach है, we get a collection of quantitative data. Now if we need to see, आप आगे आपने देखा हुआ है how statistic is helpful and where we will be seeing. Let us check related to it. ये आपने आगे पढ़ा हुआ है कि हमारा वर्क आसान कब होता है, when we make our work easier. जब भी हमको डेटा ग्राफिकल फॉर्म में दिखता है, पाई चार्ट के फॉर्म में दिखता है, पिक्टोग्राम में फॉर्म में दिख रहा है, ये सब हम पढ़ चुके हैं. हाउ वी अरेंज्ड इट इन द बार ग्राफ. आप पहले देख सकते हो बार ग्राफ. Here the information has been given कि Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, what number of favorite days week the students are having. तो ये information हमारा आसान कर देता है, इंटरप्रेट कर सकते हैं आसानी से कि सबसे ज़्यादा फेवरेट डे कौन सा है, तो that is Friday. Here we'll get in the form of pie chart. Pie chart भी एक information दे रहा है जहाँ पे more part of the area that is grey which gives the information about this. Another is a line graph. This you have studied. Pictograph हम पहले से करके आ रहे हैं. Telemark. These are the easy things which makes our thing easier. ये आसानी से हमको बता सकता है. Frequency table and frequency telegraph has not been shown over here. That is easier part. Now see what we will see in this. अभी ये चैप्टर में हम ज़्यादातर तीन चीज़ें देखेंगे, बट वो सीखे. First we learn about the central tendency. What is central tendency? Measures of central tendency. Definition says the central tendency is the stated as the statistical measure that represents the single value of entire distribution or a data set. पूरी data sheet का एक ही sheet में हमको बता देता है. It aims to provide an accurate description of the entire data in the distribution. Now here we will elaborate this chapter in three main forms. That is measures of central tendency. We have three forms, that is mean, median and mode. ये तीनों आप पहले कर चुके हो. All the three you have studied earlier. Here we'll deal one by one. We'll start first with the mean. What is mean? Students, you know, you have been doing this since 6th or 7th class. Arithmetic mean means sum of all the observations divided by नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये हम रो डेटा के लिए ले रहे हैं या अनग्रुप डेटा के लिए ले रहे हैं, वेर द इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन द रो फॉर्म. लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ मीन इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नाउ वी विल डिनोट मीन एज एक्स बार. मीन को हम एक्स बार के फॉर्म में डिनोट करेंगे. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. Mean is denoted as x bar. Sum of all the observation we will note down it in the form of sigma xi. Sigma is sum of all the observations divided by n. N is total number of observation. एक example के form में देख लेते हैं. One example has been given. You can find it by yourself. Find the mean of 26, 19, 13, 37, 31 and 15. Mean बोला है तो we'll apply the formula of mean. Let us apply the formula of mean. Mean is x bar is equal to sigma xi upon n. Sigma xi मतलब सबका प्लस upon n. Total number of observations are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Total किया we got 141. The entire total of all the 6 observation is 141 divided by 6. I got 23.5. This is the simple method for mean, that is raw data.
Now let us check another one, that is for if they have given in the ungrouped form. Observations are given over here. Observations may be any observations. We take the observations as x1, x2, x3 dot 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 xn, and frequency, how many times that observation has been repeated, that is frequency is f1, f2, f3 dot 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 fn, that is last one we are taking. So total sigma fi, that is all the frequencies are to be added over here, and then we come to the conclusion, that is xi into fi. Xi into fi karna hai, that is fi xi, x2 into f2 is f2 x2 dot 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 fn xn. तो टोटल हमको मिल रहा है सिग्मा fi xi. Sigma fi xi is the sum of all the observations that is taken at a time x1 into f1, x2 into f2, सबका प्लस करके हमको मिला है sigma fi xi, and here we are getting in the form of sigma fi, that is sum of all the total observations. Now we will see ahead in this. सपोज एक एग्जाम्पल वापस आपके फॉर्म में दिया हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. एक्स आई आपको दी हुई है, एफ आई दिया हुआ है, एक्स आई इज 2, 4, 5 एंड 6, वेर एफ आई इज 7, 8, 10 एंड 15. As we have seen, what we need to do it, we need to prepare a table and we need to find fi, xi. xi हमने लिख ली है सारी जो दी हुई है, fi लिख ली है. करना क्या है, fi xi we need to multiply that. 2 7 is 14, 4 8 is 32, 5 10 is 50, 6 15 is 90. Total आया हमारा 186. Now let us apply the formula. Mean is equal to sigma fi xi upon sigma fi. Applying over here, you can see here sigma fi xi is total 186, number of observation is 40. Applying the formula, x bar is equal to sigma fi xi divided by n, 186 divided by 40, you got it 4.65. 4.65 is the mean. You see this properly, let it be for 1 or 2 minutes, then you can go through it. Now students will learn about ungrouped data. हमने पढ़ लिया, ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे. Let us study about the group data. अभी तक जो इन्फॉर्मेशन था वो अनग्रुप्ड था, इट वॉज नॉट ग्रुप्ड प्रॉपरली. अगर ग्रुप के फॉर्म में दिया है, क्लास के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमारे पास 3 मेथड है. वी हैव 3 मेथड्स फॉर इट. वन इज डायरेक्ट मेथड, वन इज एज्यूम्ड मीन मेथड एंड द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन. ये तीनों मेथड है. उसमें पहले हम डायरेक्ट मेथड लेते हैं, विच इज इजियर वन. लेट अस स्टार्ट विद द डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड, एज यूजुअल द क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रीक्वेंसीज विल बी गिवन टू यू. क्लास है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, next is 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100, and number of students जो क्लास में आ रहा है, that is 5, 21, 21, 8, 25 and 20. यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमको क्लास दिया हुआ है, तो क्लास को हम xi फाइंड करेंगे. xi इज नथिंग बट द मिड वैल्यू, और वी कैन से द सेंट्रल वैल्यू ऑफ दैट क्लास. वो कैसे मिलेगा, तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. देन ऑल्सो लेट मी give the formula over here. Mid value is upper boundary point plus lower boundary point divided by 2. जो भी आपका upper boundary point है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 10 है, दोनों को प्लस करोगे तो आपको आएगा 35. 35 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको आएगा 17.5. विल सी अहेड. ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया हुआ है मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए. आई विल डायरेक्टली राइट दैट मिड वैल्यू इन दी टेबल. Now see here students, this information was given to us. ये हमको दिया हुआ था. क्लास इंटरवल है 10 to 25, फ्रीक्वेंसी इज 5, 25 to 40, फ्रीक्वेंसी इज 21, 40 to 55, फ्रीक्वेंसी इज 21, 55 to 70, that is 8, 70 to 85 is 25, 85 to 100 is 20. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज फ्रीक्वेंसी इज 100. यहाँ पे टोटल 100 आया हुआ है. अभी हम फाइंड क्या करेंगे, पहले xi मिड वैल्यू. फॉर्मूला मैंने आपको आगे बताया हुआ था. ये दोनों का प्लस 10 plus 25 डिवाइडेड बाई 2 आपको मिला 17.5. सिमिलरली 25 to 40 you will get 32.5 and 85.100, that is plus it and divided by 2 you will get 92.5. Students, now here this is your xi and this is your fi. तो हमारे फॉर्मूला के मुताबिक fi into xi करना है. fi xi आपको मिलेगा 5 into 17.5 आपको मिलेगा 87.5. 21 into 32.5 you will get 682.5.
एंड सिमिलरली गो ऑन मल्टीप्लाइंग दिस ऑल, मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज द एफ आई एक्स आई विच यू गॉट. नाउ वी नीड टू एड दिस ऑल. ये सारे एफ आई एक्स आई हमको ऐड करना है, सबका एडिशन किया तो मुझे मिला 6055. यू विल एडिड, प्लीज सी द डेसिमल्स प्रोपरली वेल एडिंग. 10th प्लेस जो है डेसिमल के बाद 10th प्लेस वो सब एक साथ होने चाहिए. वंस प्लेस शुड बी टुगेदर, टेंस एंड 100. वाई आई एम फोर्सिंग ओवर हियर, मैं यहाँ पे क्यों थोड़ा फोर्स दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही है स्टूडेंट्स से. सो प्लीज़ सी टू इट. टोटल कम्स 6055. यहाँ पे हमको सिग्मा एफ आई जो हमको टोटल मिला है 100, सिग्मा एफ आई एक्स आई 6055 विच वी गॉट फ्रॉम हियर. एक्स बार फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई विच आई हैव अप्लाइड इट ओवर हियर. इसको मैंने रख दिया सिग्मा एफ आई को 6055 डिवाइडेड बाय 100 किया. 100 से डिवाइड करोगे एज इट इज 100 ओवर हियर. वी डू नॉट वांट टू डिवाइड, जस्ट 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देते हैं. 60.55. योर मीन इज 60.55. स्टूडेंट्स सी दिस वेरी केयरफुली. ये आपका फर्स्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड, वेर वी नीड टू फाइंड द एक्स आई. इसके लिए फाइंड करना पड़ा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्लास था. स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट मेथड है. नाउ वील सी द सेकेंड मेथड विच इज एज्यूम्ड मीन. अभी क्या फर्क पड़ेगा, एक मेथड दिया हुआ है, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड. तो जैसे जैसे मेथड में सर्टन इंफॉर्मेशन विल बी एडेड एंड इट विल मेक अवर कैलकुलेशन ईजियर. डायरेक्ट मेथड से एज्यूम्ड मीन में थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, जहाँ पे हमको एक्स आई एज्यूम करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स एक्स आई कैसे फाइंड करना है वो हमने ऑलरेडी सीख लिया हुआ है. क्लास इज एज इट इज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी वही है, मेथड खाली बदल रहा हूँ, so that you will see कि in all the 3 answers will be same. Let us see this method. Students class is as it is, frequency is as it is. mid value जो हमने find की हुई है, mid value भी वैसे ही find करना है, दोनों का plus divided by 2. again the second class 25 to 40 divided by 2, 40 to 55 divided by 2 आपको मिलेगा 47.5. similarly as we have done earlier. यहाँ तक दोनों मेथड सेम है. अभी यहाँ पे एक assumed करना है. एज्यूम्ड आपको एक्स आई पे करना है, एनीवेयर यू कैन एज्यूम्ड, बट हम ज़्यादातर एज्यूम्ड करेंगे मिडल टर्म. दोनों क्लास में जो मिडल वाला है वो हम एज्यूम करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 क्लासेज है, so we will not get the middle one, so we have taken the 4th class. आप थर्ड भी ले सकते हो, सेकेंड भी ले सकते हो, 5th भी ले सकते हो, कोई भी क्लास ले सकते हो आप. अभी क्या करना है, तो हमको डी आई, यहाँ पे एक नई वैल्यू आएगी, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस है. डी आई कैसे मिलेगा, एक्स आई माइनस है, ये सारी आपकी एक्स आई है, उसमें से ए जो सपोज किया है वो आपको माइनस करना है. हमने यहाँ पे ए 62.5 सपोज किया, तो हर एक में से, हर एक मिड वैल्यू में से 62.5 माइनस करना है. एज वी मूव अहेड, जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 62.5 के आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे हमको नेगेटिव मिलेगा, और नीचे जाएंगे यहाँ पे 0 मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगा. लेट अस डू द फर्स्ट वन. 62.5 माइनस 62.5 आई गॉट 0. 47.5 माइनस 62.5 आई गॉट माइनस 15. आई गॉट हियर माइनस 30, माइनस 45 एंड 15 एंड 30. स्टूडेंट्स बी केयरफुल, एक्स आई में से ए माइनस करना है, ए में से एक्स आई माइनस नहीं करना है. आप ए में से एक्स आई माइनस करोगे, लेकिन साइन जो है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आपको अप्लाई करनी है. मल्टीप्लाई करना है एफ आई डी आई. डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते थे, एफ आई एक्स आई करते थे, यहाँ पे हम करेंगे एफ आई डी आई, जो डी आई हमको मिला हुआ है 5 इंटू 45, दैट इज माइनस 45 विल गिव यू माइनस 225. 21 इंटू माइनस 30 इज 630. 21 इंटू माइनस 15 इज 315. 8 इंटू 0 इज 0. एंड 25 इंटू 15 इज 375 एंड 20 इंटू 30 इज 600. ये सबका वापस आपको प्लस करना है. मैंने पहले नेगेटिव नंबर्स जो है, दिस आर ऑल द नेगेटिव नंबर्स, मैंने उसको पहले ऐड कर दिया है, जो मिला 1170 विच आई गॉट इट 1170 एंड टोटल ऑफ दिस आई गॉट 975. एज दिस आर नेगेटिव्स आई हैव इंसर्ट द साइन माइनस, दोनों में से प्लस माइनस किया, आई गॉट माइनस 195. माइनस क्यों, क्योंकि साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 1170 is greater number which sign is negative, as a result I got 195. Take the information over here, sigma f5 is equal to 100, sigma f5 di है वो 195 है,
और ए हमने जो सपोज किया था वो है 62.5। एक चीज़ यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगी, ए फॉर्मूला में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पे एफ आई डी आई क्यों? क्योंकि हमने डी आई फाइंड किया है डेविएशंस। दोनों को 195 को डिवाइडेड बाय 100 किया तो मेरे को 1.95 आया। यू कैन इवन टेक आउट द एलसीएम, बट हियर इट वाज इजियर वन, सो दिस यू कैन गेट डायरेक्टली। माइनस है, माइनस किया, आंसर आया 60.55। अगेन द आंसर इज सेम। स्टूडेंट्स पहले हमने डायरेक्ट मेथड किया था, उसमें भी यही आंसर था। एज्यूम्ड मीन किया, उसमें भी यही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड। नाउ स्टूडेंट्स विल सी द थर्ड मेथड ऑफ मीन, जो है स्टेप डेविएशन, जो हमारा वर्क जो है थोड़ा आसान करेगा। कैलकुलेशंस विल बी बिट इजियर। क्यों इजियर होगा? क्योंकि क्लास साइज जो है वो हमको यहाँ पे आ जाएगी, विच विल डिवाइड एंड विल गेट ऑलमोस्ट इन द टर्म्स ऑफ 1 2 3 4। तो हमारा कैलकुलेशंस विल बी बिट इजियर। अगेन द थिंग्स रिमेन सेम। क्लास इंटरवल है वो वही का वही रखा है, फ्रीक्वेंसी भी वही रखी है। क्वेश्चंस इज दिस मच। अभी हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू जो आपकी थी वही है। यहाँ पे विल गेट द न्यू वन, दैट इज यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पे पहले हमारे पास था डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, दैट वॉज एज्यूम्ड मीन। अभी यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच डिवाइडेड बाई एच, मतलब ये हमको स्टेप डेविएशन विच मेक्स अवर कैलकुलेशन इजियर। एक्स आई माइनस ए जो आया था आपको, उसको एच क्लास साइज कितनी है तो 25 माइनस 10। इफ यू टेक 25 माइनस 10 क्लास साइज इज 15, एच इज इक्वल टू 15। तो उससे डिवाइड करोगे माइनस 45 डिवाइडेड बाई 15 यू विल गेट -3 -2, द नेक्स्ट इज -1 0 1 एंड 2। स्टूडेंट्स ये इतना ईजी हो गया। अभी स्टेप डेविएशन जो हमारा प्रोसेस है वो एकदम आसान कर देता है। मल्टीप्लीकेशन विल बी बिट इजियर ओवर हियर। नाउ एफ आई यू आई, इंस्टेड ऑफ डी आई इट इज एफ आई यू आई। मल्टीप्लाई दैट, 5 3 साइज 15 माइनस है तो -15, 21 2 साइज -42, 21 1 साइज -21, 8 इंटू 0 is 0, 25 1 size 25, 20 into 2 is 40. Now again I am adding this all the negative numbers. I got -78, ये सबको प्लस किया, 65 है, दोनों को माइनस किया as it is minus over here. Subtracting I got -13. Put it in the value, फॉर्मूला बदल जाएगा। x bar is equal to a plus in bracket सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने इन्फॉर्मेशन में से ले लिया, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम हियर। ए आपको मिल गया, एच इज इक्वल टू 15, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना है 62.5, एफ आई यू आई इज -13 इंटू 100 इंटू 15। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या इसको डिवाइड कर सकते हो एंड देन मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर। अगर 13 इंटू 15 करोगे तो 195 आएगा, उसको डिवाइड बाय 100 करोगे तो 1.95 आएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर डालोगे 62.5 में से आपको 60.55 आएगा। बी वेरी केयरफुल, पहले हमको अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड ही करना है एंड देन मल्टीप्लाई। एज इट इज इन ब्रैकेट विल सॉल्व आउट द ब्रैकेट फर्स्ट। दिस इज द लास्ट मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन इन मीन। यहाँ पे हमारा मीन का पार्ट है वो फिनिश होता है। स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पार्ट। हम वापस एक बार रिपीट करते हैं, तीनों चीज़ में क्या हमने देखा हुआ है। फर्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में रो डेटा हमने देखा हुआ है, जो सीधा फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। उसके बाद हमने देखा ग्रुप डेटा। इन ग्रुप डेटा वी हैव सीन 3 मेथड्स, वन इज डायरेक्ट मेथड, one is assumed mean and one is step deviation. I am repeating the formulas of direct method. X bar is equal to sigma fi xi upon sigma fi. Second is assumed mean, x bar is equal to a plus sigma fi di upon sigma fi. And last, that is step deviation, x bar is equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. I hope you understood this. प्लीज़ डू द एक्सरसाइज रिलेटेड टू इट, दैट इज 14.1। ये इसके ऊपर है, अनलेस एंड अनटिल इट इज सेड यू आर सपोज टू डू विद दिस स्पेसिफिक मेथड। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। आई रिकमेंड यू टू डू दिस स्टेप डेविएशन एज इट इज इजियर। स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।